Hey everyone, welcome to my YouTube channel. We are again here to solve today's coding challenge. So today's challenge is to find greatest common divisor traversal in the graph given. So now first read the problem. So the problem says that you are given a zero index integer array nums and you are allowed to traverse between its indices. You can traverse between index I and index j if I is not equals to j, if and if only if GCD of nums I and nums j is greater than 1, where GCD is the greatest common divisor. सो प्रॉब्लम ये कह रही है कि हमें एक एरे दी गई है नम्स, ठीक है, तो उसमें हमारे क्या है, सारी वैल्यूज स्टोर हो रखी हैं। अब हमें उसको ट्रेवर्स करना है। अब हम ट्रेवर्स कैसे कर सकते हैं? एक ऐसे कर सकते हैं कि अगर हम आई इंडेक्स पे हैं तो हम जे इंडेक्स पे तभी जा सकते हैं जब वो आई और जे आपस में बराबर ना हो। मतलब मेरा जो जे इंडेक्स है वो हमेशा आई से आगे होगा। अगर मेरा आई 2 पे है तो मेरा जे या तो 3 हो सकता है या 6 हो सकता है। और दूसरी कंडीशन क्या दी है कि अगर इन दोनों का जीसीडी होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर, यानी वो सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करेगा वो क्या होना चाहिए, वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, तभी मैं आई से जे तक जा सकती हूँ। जैसे कि मैं देखूं, अगर मैं आई 2 ले लूं और मैं जे 3 ले लूं तो और 2 और 3 का जीसीडी अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वो 1 होता है और ये ग्रेटर देन 1 नहीं है, तो मेरी सेकंड कंडीशन जो है वो फॉल्स हो गई, जिसके कारण मैं 2 से 3 तो ट्रैवर्स नहीं कर सकती। अब मैं चेक करूंगी कि क्या मेरा 2 और मेरे 6 का जीसीडी 1 से बड़ा है। अगर ये 1 से ग्रेटर देन है तो मैं यहाँ पे ट्रेवर्स कर सकती हूँ। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल में हमें बताया है कि देयर आर 3 पॉसिबल पेयर्स ऑफ इंडिसेस, लाइक वी कैन मूव फ्रॉम 0 1 0 to 1 2। These are the 3 possible paths we can follow. So to go from index 0 to index 1 we can use the sequence of traversal. तो 0 से 1 डायरेक्ट जाने के लिए हम नहीं जा सकते क्योंकि इसका जीसीडी लेस देन मतलब इक्वल्स टू 1 है, इट इज नॉट ग्रेटर देन 1। तो हम क्या करेंगे, पहले हम जाएंगे 2 से 6 पे, इसका जीसीडी 2 मिलेगा, फिर 6 और 3 का जीसीडी कैलकुलेट करेंगे तो वो हमें क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। इट मीन्स वी विल गो फ्रॉम 0 इंडेक्स टू सेकंड इंडेक्स फर्स्ट, देन वी विल गो टू द 1 इंडेक्स। एंड नेक्स्ट इसमें क्या बोला है कि इस वजह से क्या हुआ है, नेक्स्ट इसमें स्टेटमेंट दिया है कि हमारा टास्क है डिटरमाइन करना कि क्या एवरी पेयर ऑफ इंडिसेस आई एंड जे इन नाम्स वेयर आई इज ऑलवेज लेस देन जे देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस ऑफ ट्रैवर्सल दैट कैन मेक अस फ्रॉम आई टू जे, मींस देयर एग्जिस्ट अ पाथ from where I can move from the I index to J index for every value of nums. If such traversal is possible, then I have to return true, otherwise I will return false. So what is GCD? The greatest common divisor, GCD, of two numbers a and b is the largest possible integer that divides both a and b without leaving a remainder. It is denoted as GCD bracket a comma b. So let's find the GCD of two numbers, let's say 48 and 18. Okay, using Euclidean algorithm. So there are many algorithms which you can use to find the GCD. Here we are using the Euclidean algorithm. Now, step 1 will be, we'll divide 48 by 18, then we'll get a remainder as 12. Then again, we'll divide 18 by 12, we'll get the remainder as 6. We'll get the remainder as 6. And then again, in step number 3, we will divide 12 by 6 and we will get a remainder as 0, which means that the GCD of 48 and 18 is 6, because at last I am getting 6. Means 6 is a GCD, or we can say HCF of 48 and 18. Now let us see the relationship between GCD and prime factors of a number. The greatest common divisor (GCD) of two numbers is related to the prime numbers through their prime factorization, which says that GCD is the product of common prime numbers which of two numbers each raised to the lowest power of how they appear in the factorization of both the numbers. So let's take an example. So if we take 12 and if we take 6, if I'll do the prime factorization of 12, what I will get? 2 multiply by 2 and multiply by 3. And for 6, what will be the prime factorization? 2 multiply by 3. Okay. So here what we can see that the common factor is 2 is common and then 3 is common. And here also 1 2 is common and 1 3 is common. So we will calculate the GCD as 2 power. We'll calculate the GCD 2 power 1 multiply by 3 power 1, which will be equals to 6. Okay, so this will become the GCD for 12 and 6. Now let us see the approach to solve this problem. Okay, so the approach to solve this problem is, what we will do, first we will calculate the GCD by calculating all the prime factors in this range, and then what we will do,
that we will work with the prime factors instead of finding the GCD every time. So we will first calculate all the prime factors and then we will check the prime factors for calculating the GCD instead of directly calculating the GCD. So step number one will be to calculate the prime factors of all the numbers in the stored list, and then we will store the key value pair as, like, for 6 my prime factors are 2, 3. This will be my prime factors, and same I will create two arrays, one where I will store prime and the number whose factor is it is, and in second array I will store the number and its prime factor, so that I can traverse both the arrays simultaneously. Next, will the second step is the same. We will create a reverse mapping, and where key will be the prime factor and value will be the array of index number. Okay, now third will be, we'll run a DFS from every array index to mark the indices which we have visited. If in a DFS call we mark all the visited to be the number of connected components, it means that अगर हमने उस DFS में सारे जितने भी मेरे मेरे array में जितने भी मेरे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, अगर मैंने उनको ट्रेवर्स कर लिया उस DFS के थ्रू, तो मैं रिटर्न कर दूंगी ट्रू, बिकॉज देयर इज अ पाथ दैट एग्जिस्ट बिटवीन एवरी नोड टू द अदर नोड, एंड एल्स आई विल रिटर्न हियर फॉल्स. Okay, so now let's see what will be the time complexity. So here we are running a loop n times, which is equals to the count of all the prime factors. Okay, so this will be the time complexity. We are scanning the two list, and both the list will contain how many elements? They will contain n into count of all the prime factors. And then what will be the space complexity for this? O n plus count of all the prime factors. Okay, this is the approach we'll follow. And now let's just code it. First, what we have done here is we have created two unordered map, which we have named as prime to index, which means this will store the key will be my prime number and index will be the value where my whose prime factor it is. सेकेंड अनऑर्डर मैप में हम क्या स्टोर कर रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि इंडेक्स पे, उस नम के इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है. फॉर से अगर मेरी एरे में थर्ड 3 वो वैल्यू है, तो उसका प्राइम फैक्टर क्या होगा, तो उसको मैं एज अ इंडेक्सिंग स्टोर कर लूंगी. तो ये तो एक फर्स्ट एरे बन गया. और ये जो सेकंड एरे है ये रिवर्स मैपिंग के लिए यूज हो रही है. रिवर्स मैपिंग का मतलब यहाँ पे सिर्फ इतना है कि यहाँ पे हम प्राइम से इंडेक्सिंग, यहाँ पे हमारा जो की है वो प्राइम नंबर है और यहाँ पे हमारी जो की है वो हमारा इंडेक्स बन रहा है. तो हम एक फंक्शन बनाएंगे DFS नाम से, जिसमें हम उस ग्राफ के हर एक कंपोनेंट को ट्रेवल करने की कोशिश करेंगे, जिसके हमारे पास 4 पैरामीटर्स हैं, 3 पैरामीटर्स हैं, जो कि है इंडेक्स, जिस इंडेक्स से हमें स्टार्ट करना है. सेकंड है मेरी एक विजिटेड एरे, जो मुझे बताएगी कि उस ग्राफ में मैंने कौन कौन से नोड्स को ऑलरेडी विजिट कर लिया है, जिससे मुझे उनको दोबारा विजिट करने की नीड नहीं है. और थर्ड क्या है, इसमें एक अनऑर्डर्ड मैप है इंट कॉमा बूल टाइप का, जो मुझे बताएगा कि कौन सा विजिटेड प्राइम है जो मैं ऑलरेडी विजिट कर चुकी हूँ. सो फर्स्ट आई विल चेक कि अगर मेरा विजिटेड का इंडेक्स पे जो नंबर है, फॉर से यहाँ पे अगर 0 है, अगर वो ट्रू है तो मैं डायरेक्ट यहीं से रिटर्न कर दूंगी, मुझे बाकी कुछ भी प्रोसेस करने का इस पाथ में ज़रूरत नहीं है. और अगर ऐसा नहीं है तो एल्स में हम अपडेट कर देंगे अपनी एरे को. ओके, इसको अपडेट करने के बाद हम एक लूप चलाएंगे. हम चेक करेंगे कि इंडेक्स टू प्राइम के इंडेक्स पे कौन कौन से नंबर्स हैं, क्योंकि ये भी हमें एक एरे देगा, उस नंबर के कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स हैं वो सारे यहाँ पे स्टोर्ड हैं. फिर हम उनको देखेंगे कि अगर विजिटेड का प्राइम ट्रू है तो हम उसको स्किप करके अगले प्राइम नंबर पे शिफ्ट हो जाएंगे, और अगर नहीं है तो हम विजिटेड प्राइम एरे को अपडेट कर देंगे. ठीक है, अपडेट करने के बाद हमने क्या किया, अब क्योंकि हमें वहाँ पे भी एक प्राइम नंबर की पूरी एरे मिली थी, तो हम उसको अगेन ट्रैवर्स करेंगे अपनी प्राइम टू इंडेक्स एरे पे, जो प्राइम नंबर हमें वहाँ से मिल रहा है 1 बाय 1. यहाँ इस लूप से जो प्राइम नंबर मिलेगा उसको अपनी प्राइम टू इंडेक्स एरे में चेक करेंगे. वहाँ पे भी हमें एक लिस्ट मिलेगी कि वो प्राइम नंबर किस किस हमारे नम्स का फैक्टर है, तो हम उसको चेक करेंगे. अगर विजिटेड इंडेक्स उस नंबर के लिए ट्रू है तो हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट आइटम के लिए. अगर वो ट्रू नहीं है तो हम यहाँ पे एक रिकर्सिव कॉल कर देंगे उस आइटम के लिए, और फिर इंडेक्स हमारा क्या हो जाएगा, इंडेक्स 1, जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, यानी प्राइम टू इंडेक्स एरे से जो हमें यहाँ पे नंबर मिलेगा वो हम यहाँ पे नेक्स्ट इंडेक्स एज अ पास कर देंगे. सो जो मेन फंक्शन है बूल कैन ट्रेवर्स ऑल पेयर्स, इसमें हमें नम्स एरे पहले से दी गई है. इसमें हमने पहले एक लूप चलाया, हमने एवरी नंबर के लिए जो नम्स में प्रेजेंट है उसके लिए हमने एक प्राइम नंबर कैलकुलेट किया. एंड आई होप दैट यू नो दैट हाउ टू कैलकुलेट प्राइम नंबर. और उस प्राइम नंबर को हमने क्या करा, अपनी दोनों एरे जो हमने अनऑर्डर मैप क्रिएट करे थे दो, उन दोनों में हमने पुश कर लिया. अब पुश कैसे करा, ये तो हमने सिंपली J टू I की मैपिंग क्रिएट करी, और यहाँ पे हमने रिवर्स मैपिंग करी I टू J की, ताकि हम दोनों एरेज में ट्रेवर्स कर सकें सेपरेटली. तो जब तक टेम्प मॉड्यूलस J मेरा 0 नहीं आता, मैंने टेम्प को रिड्यूस करा और ये लूप अगेन रन होगा. उसके बाद मैंने चेक करा कि अभी इफ माई टेम्प वैल्यू इज now also greater than 1, it means that
आई एम लेफ्ट विद वन प्राइम फैक्टर, और मैं उस प्राइम फैक्टर को भी अपनी एरे में पुश कर लूंगी, दोनों एरेज में। उसके बाद मैंने एक और वेक्टर क्रिएट किया जिसको मैं अपने डीएफएस में पास कर रही हूँ टू चेक वेदर दैट वैल्यू इज visited or not. At last, we are checking the visited index array. If all are visited, so then we will return true. If we will get somewhere that this index is not traversed, which means that my visited index will contain false, for this I will return as false. Now let's just submit this code. So hence it is successfully accepted and we have completed 58 days, and this message says that consistency is the key and see you tomorrow. So same is my message for you. Consistency is the key, and I will see you tomorrow in next video. Please like on it, comment on it, subscribe to my channel, and let's see you in the next video. Bye.